credible, knowledgeable. Trust Zia Abbas. Buy low and sell high with Zia Abbas. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़िया अब्बास। आप देख रहे हैं बाय लो सेल हाई। आज सवालात बहुत ज़्यादा हैं और वक्त की बहुत कमी है और मुझे लगता है कि जो हमारे गेस्ट है वो भी कम पड़ जाएंगे। हम बहुत सी बातचीत करनी है आज हमने। हमारे पहले गेस्ट आज होंगे शमैज़ विरानी, जो कि सेंटर कोर्ट डेवलपमेंट से उनका ताल्लुक़ है। हमारे सेकंड गेस्ट होंगे सलमान आरिफ और एंड में हमारी बात होगी शेख अजीज़ से। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट गेस्ट की तरफ। स्टे विद अस। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शमैज़ विरानी हैं, वाइस प्रेसिडेंट सेंटर कोर्ट डेवलपमेंट। और अगर हम सेंटर कोर्ट की बात कर रहे हैं तो अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट पीटर स्ट्रीट, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स कॉन्डोमिनियम, वी आर टॉकिंग अबाउट कारमा, वी आर टॉकिंग अबाउट कोर कॉन्डो। ट्रिमेंडस सक्सेसेस इन द पास्ट और इस वक्त जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, दैट इज़ अ ग्रेट कॉन्डो। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। Hi Shamaz, how are you? Hi Zia, thank you for having me. Welcome on board. Thank you. Great excitement moment at this point in time. You guys just introduced Grid Condo. Grid Condo is located right at the corner of Jarvis and Dundas. A great corner, a very successful corner for the previous developers as well. Why this Grid Condo project is so much in demand today? I think there's a lot of reasons, Zia, but if I had to give you just one, and the main one, it would be Ryerson University. Okay. And Ryerson University has experienced exponential growth in the last number of years. It's the fastest growing academic institution in all of Canada and is continuing to grow at a very rapid pace. But because it's an urban campus, and for those of your viewers that aren't familiar, the southeast corner of Ryerson's campus, their actual campus map is the northwest corner of Dundas and Jarvis, so literally kitty corner from our site. As Ryerson's continued to expand their programs and their facilities, they haven't kept up on the housing side. And that's created a massive opportunity for residential development in close proximity to Ryerson. Because the astute investor, the first question they're going to ask themselves is, how much can I rent this for, and where's the demand going to come from? And for anybody that's bought a project in close proximity to a major academic institution, they know that the student population continues to grow at these schools, and there continues to be massive demand to be in those locations. Students, are cost and time conscious, so they want to be as close to the school and their facility to roll out of bed and roll into the classroom as possible. So when we had the opportunity to acquire this piece of property at the southeast corner of Dundas and Jarvis, which is literally kitty corner from a future sciences building that Ryerson is developing, we jumped at it. And that's the last corner. That's the last corner. Yes. As you know, all four corners of this exciting intersection are well under development. And we got really excited because of Ryerson and the opportunities that it afforded us with this site. So, in terms of prices, you guys are only 2 blocks away from Eaton Center, from Yonge and Dundas. What cost per foot in average we are talking about? Yeah, so our pricing is going to be in a very, very tight price range, and that starts with the suite designs, and which you've seen now, Zia. So our suite designs start at 415 square feet for a 1-bedroom to really efficient 2-bedroom suites in the mid 600s of square footage. That's the area of the suites. And what we've really done is focus on knowing that our demographic is Ryerson students. How do we create extremely efficient suite designs that'll allow for multiple tenant situations where, with students, you typically have roommate situations. And, your clients, the astute investor, is looking at a very simple calculation, and that is, what's my cash flow going to look like? How am I going to do on a monthly, annual basis if I can rent it out for X and my carrying costs, my mortgage, my condo fees, my property taxes are Y? And what we think we've done with the types of suites that we've designed, the price point that we're going to be selling the project for, we've created what I think is some of the most compelling cash flow opportunities in the city for the astute investor. And at the end of the day, when I think your clients and your astute investors compare Grid Condos to the other sea of projects, some of which you mentioned, just west of Yonge Street, when you look at the rents that they can achieve, they're very comparable. The renter, the Ryerson student is actually preferring to be in this location relative to some of those projects west of Yonge. So they're paying
premium rents in this location, Yeah. but because of our price point, which is going to have very affordable price points and the carrying costs being so low, it's creating such a great investment opportunity for your clients and for investors in the condo market. Definitely. I built a great relationship with Center Court. Yes. And approx, I sold close to 100 or over 100 units. Well over 100 units. Well over 100 units. And with a very successful completion. So what you would advise my client at this point in time, that should they come on board and invest? Yeah, now obviously I'm biased, but listen, when we buy a site and when we prepare to develop, and as you mentioned, we've had a really successful 4 years of existence. All 4 of our past projects have sold out and been under construction within a year of their launch, which really tells us that we've picked good locations that offered good price points and offered good returns. And the way that we evaluate our opportunities is the same way that your clients do. Yes. With us, we're looking at it and saying, if we can make this work for the investor, if we can make this a compelling opportunity, the project is going to be successful. So we look at it through the lens of your clients. And when we did that, when we looked at this location, what's happening in downtown East, it's happening in this area just in close proximity to Ryerson University, we realized that this is an opportunity, this development is going to offer far superior returns to comparable projects in the downtown core. And that's what gets us so excited. And as I was telling you earlier, Zia, my phone hasn't stopped ringing. My phone has not. Since we started talking about grid condos only a week ago, I can't keep up with my voicemails, my text messages, my emails. It's the demand is immense, and I can't describe it any other way as being incredibly immense and with a ton of demand. Let's talk about the functionality of the floor plan. Great 12 units, right? Very well laid down, especially your 1+ den. The way you guys lay down, it's den as a second bedroom. But in the living room, if you can just draw a wall, you can easily accommodate 3 students. Right. What you say about the functionality? I would say, our 1-bedroom plus dens start at 495 square feet, and the largest one is 575 square feet. And you've seen enough plans in your day to know where there's efficiency and where there's not. If someone can show me an area in any of our plans that's wasted space, I would welcome that individual to show it to me, because I think that the plans that we've come up with here are the best plans, the best floor plate for this location, for efficiency, and for the end user, as you point out, as anyone's ever been able to develop. And I take a lot of pride in that, because we spend a great amount of time perfecting the plans. And a lot of people look at price per square foot or square footage as an indicator of a suite size. Yes. You got to look at efficiency, because you can have, we have 495 to 575 is 1-bedroom plus dens. You've seen enough 1-bedroom plus dens of 650 to 750 square feet. But when you put the plans side by side, and when you look at the actual livability, and you look at the way that our living spaces and our kitchens lay out relative to some larger suites with the same 1-bedroom plus den, you actually see that these suites, although smaller in actual number of square feet, are more livable, more breathable, have more usable space. And at the end of the day, when you're renting, you're looking for that. Shamaz, thank you very much. Great discussion. Thank you. Nazreen, जैसे आपने देखा, great condo, great corner. Myself, I was quite successful in that corner, and this would be my 3rd attempt for that corner. आप अपना due diligence ज़रूर करें in terms of how this investment is good for you. But मेरी recommendation big time है, और आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं. We have a selective number of units. यहाँ से हम चलते हैं break की तरफ. Stay with us. Hi, I'm Zia Abbas, introducing the first 2015 condominium project, Stanley Condos, in downtown Toronto. It's at the corner of Church and Carlton, next to Ryerson University, walking distance to St. Michael, Eaton Centre and Dundas Square. Call me for the guaranteed units before VIP opening. Where Tribute really makes a difference is in the quality. My Tribute. The warranty's there, but you won't need to use it. My Tribute. Outstanding quality for complete peace of mind. My Tribute. Quality that exceeds the standards. Winner of the J.D. Power Award for highest in customer satisfaction with new home builders in the GTA. A tradition of excellence for over 30 years. Visit mytribute.ca. इतना है कि आपको उसको सॉल्व करने के लिए दूसरा चांस नहीं मिलता. हमेशा राइट ब्रोकर चूज करें. फ्री कंसल्टेशन के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं. जब ये पेशेवर अपने खानदान को महफूज करना चाहते हैं किसी नागहानी मौत, माजूरी या किसी मौजी मर्ज से, तो वो एक बाएतबार नाम की तरफ आते हैं. अपने खानदान और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत कीजिए. रूज फाइनेंशियल, आपकी हिफाजत बुलंदियों तक. 2 दहाइयों पर मुईद बेकर रियल एस्टेट टोरंटो में पेश करते हैं एक और कामयाब तामीराती मंसूबा,
जब आप बिगर के जरिए खरीदारी करते हैं तो आप फायदे में हैं। एबीएन एक अकाउंटिंग फर्म है जहां आप मुख्तलिफ मालियाती और इक़्तिसादी मुशावरत के लिए हमारी खिदमात और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं ताकि न सिर्फ आपकी सरमायाकारी महफूज रहे बल्कि इसमें इजाफा हो। गिनती की दुनिया से बाहर देखिए, CPAs आपके मावन मददगार साबित हो सकते हैं। Hi, I'm Zia Abbas introducing the first 2015 condominium project, Stanley Condos in downtown Toronto. It's at the corner of Church and Carlton, next to Ryerson University, walking distance to St. Michael, Eaton Centre and Dundas Square. Call me for the guaranteed units before VIP opening. नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सलमान आरिफ है जो कि मॉर्गेज अलायंस टीम सलमान आरिफ से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे बहुत बातचीत करेंगे और थोड़ा सा आज इनको हम कोशिश करेंगे टफ टाइम में। कैसे हैं सलमान भाई? मैं ठीक से, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। मुझे एक ईमेल आया, बल्कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन एक व्यूवर से था। अल्लाह खैर करे। वो बता रहे हैं कि बहुत अच्छी बातें करते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त टिप देते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप बहुत ही ग्रीन पाथ पे उनको लेके चलते हैं, उनको आप अदर सेक्टर दिखाते नहीं हैं कि व्हाट इफ़ बट अगर ऐसी चीज़ें हों तो उस सूरत में क्या होगा। तो आप तैयारी करके आए हैं? तैयारी बस हैगी, आप सवाल करें पहले, क्योंकि आज मैंने ऑडियंस बन के आपसे बातचीत करनी है। हमने एक एपिसोड में बात की थी रीफाइनेंस की कि अगर आपके घर का एक सर्टन चंक पेड ऑफ है या फुली पेड ऑफ है, अगर उसमें से आप पैसे निकालते हैं एज अ रीफाइनेंस 3-3.5% इंटरेस्ट रेट बैंक को देख के, अगर आप वो दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है कि यू एंडेड अप मेकिंग गुड रिटर्न। इसका जो नेगेटिव पोर्शन है, या अगर फर्ज करें तो समहाउ दैट डजंट गो थ्रू वेल, तो उस सूरत में क्या होगा? देखिए ज़िया, इसका जो नेगेटिव पोर्शन या नेगेटिव इम्पैक्ट है, सही, वो टोटल क्लाइंट या कंज्यूमर के माइंडसेट के अंदर है। ठीक है। इनफैक्ट अगर देखा जाए और सारे नंबर्स को कैलकुलेट किया जाए तो इस चीज़ में कोई नेगेटिव पहलू है ही नहीं। ठीक है। जब हम क्लाइंट के साथ बैठते हैं इनिशियल कंसल्टेशन पे और उसके बाद जितनी भी उसके साथ मीटिंग्स होती हैं, तो जो डीप या नेगेटिव पहलूज़ हैं, जो नेगेटिव सेक्शंस हैं उस चीज़ के, उस ट्रांजैक्शन के, वो हम अपफ्रंट ही क्लाइंट को बता देते हैं कि इन बेस के ऊपर ये चीज़ होनी है, आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि बेसिकली हो क्या रहा है। राइट? जब आप अपने घर से पैसे निकाल कर एक कहीं इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, उसमें बेसिकली आप अपनी जेब से $0 पे कर रहे होते हैं। सही। एंड आई कैन प्रूव इट। ठीक है। राइट? आप वहाँ से पैसे जब निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आपने $50,000 या $100,000 निकाले अपनी प्रॉपर्टी में से, आपकी लाइबिलिटी $50,000 या $100,000 बढ़ गई। सही। सो आपकी जो मॉर्गेज पेमेंट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो गई। सही। पहले अगर आप दे रहे थे 2,000, अब दे रहे हैं मे बी 2,500, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके। राइट? वो पैसा आप लगाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में ख़रीदने पे, और उसको ख़रीदने के बाद उसको रेंट आउट करते हैं उस प्रॉपर्टी को। ठीक है। जो स्टैट्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आप जितनी की मॉर्गेज दे रहे होते हैं उस रेंटल प्रॉपर्टी की, आपके पास जो रेंटल इनकम आ रही होती है वो उससे ज़्यादा आ रही होती है। ठीक है। सो बेसिकली वो जो एक्सेस रेंटल अमाउंट है वो आपका पार्ट कवर कर रहा है उस मॉर्गेज का जो आपने एक्स्ट्रा $100,000 अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर गेन किया, जो आपने अपनी इक्विटी से उठाए पैसे। ठीक है। तो जितनी मॉर्गेज उसकी बढ़ी वो पैसा उसको कवर करेगा। परफेक्ट। राइट? सो बेसिकली आप देखें कि आपने एक सर्कल चलाया, पैसा इस अकाउंट से उठा के, जब मैं हमेशा कहता हूँ कि इस अकाउंट से उठा के दूसरे अकाउंट में रखा, आप उसको स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो उसके टूवर्ड्स आपके ऊपर लायबिलिटी आई वो एट द एंड आकर 0 हो गई है। परफेक्ट। क्विक क्वेश्चन। श्योर। क्लाइंट्स हैं, क्वालिफाइड भी हैं, बीकन स्कोर भी बड़ा अच्छा है। राइट। ठीक है, सही है, सारी चीज़ें ठीक है, बैंक चले जाते हैं, डिक्लाइन होकर वापस आ जाते हैं, क्यों? आर वी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइम बायर? ऑफ कोर्स, लाइक यू नो। ओके। जब फर्स्ट टाइम बायर घर लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं तो वो अपनी बेस्ड ऑन के उनकी इनकम क्या है और सारी चीज़ें देखते हुए उनके जो सर्विस रेशियोज़ हैं उनको कैलकुलेट करता है बैंक, और सर्विस रेशियो जब उनके आउट होते हैं एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा, ठीक है, तो बैंक उनको ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर देता है। अब जब वो ब्रांच में या बैंक के पास जा रहे हैं तो वो उनका जो जनरल सर्विस रेशियो है वो 32% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मींस कि जो जितनी भी इनकी इनकम है, उनकी मॉर्गेज पेमेंट, उनका प्रॉपर्टी टैक्स बिल, उनकी यूटिलिटी बिल, सब मिलाकर उनकी इनकम का 32% से बिलो होना चाहिए। ओके। ये बेसिक फार्मूला। और जो उनका
टोटल डेट रेशियो है जिसमें उनकी अदर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हैं, कार की पेमेंट्स हैं, वो मिलाकर बिलो 40% होनी चाहिए। सही, राइट। अब जब वो जा रहे हैं बैंक के पास, बैंक ने उनकी सारी चीज़ें देखी और उनको डिक्लाइन कर दिया, एवरीथिंग इज़ क्लीन, एवरीथिंग इज़ गुड, बट स्टिल दे गॉट डिक्लाइन। बैंक में वो जब सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो हो सकता है कि किसी इनएक्सपीरियंस पर्सन के पास थे वो, जिसने जो इनफ टाइम नहीं हुआ जिसको इस इंडस्ट्री के अंदर, और उसको सारे लूप्स नहीं पता इस इंडस्ट्री के। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जब आप बैंक के पास डिक्लाइन होकर आते हैं तो हमारे लिए करना फिर मुश्किल हो जाता है एट द एज कम्पेयर टू एट द फर्स्ट प्लेस। सही। और फर्स्ट प्लेस पे क्या है, क्यों अगर आपके पास इनकम में थोड़ी बहुत कमी हो रही है तो जो चाइल्ड टैक्स बेनिफिट, जो यूनिवर्सल चाइल्ड टैक्स बेनिफिट है, वो बैंक यूज़ कर सकता है टूवर्ड्स योर इनकम। ओके। लेकिन सारे लैंडर्स नहीं। ओके। सारे लैंडर्स, सर्टन लैंडर्स, राइट। ठीक है। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिस प्रॉपर्टी का बेसमेंट फिनिश है और आपका प्लान है उसको रेंट आउट करने का, तो जो उसकी रेंटल इनकम जो फोरकास्टिंग हो रही है, सही, वो भी आपकी इनकम के अंदर इंक्लूड हो सकती है। ओके। और इसी तरह के बहुत सारे सेक्शन और बहुत सारे जगहें ऐसी हैं, एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इन एक्सपीरियंस होने की वजह से उसको नहीं पता, ठीक है, एज कम्पेयर टू अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ब्रोकर। तो मतलब ये जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, इन सबको जो है ना प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। यूटिलाइज करने के बाद एक प्रॉपर पैकेज, तो फिर बात वही आ जाती है ना सलमान भाई कि हु वुड बी द राइट पर्सन टू पैकेज इट ना। राइट। उनके अंदर कैपेबिलिटी है इन सबको प्रॉपर पैकेज करने की, क्योंकि मॉर्गेज अप्रूवल के लिए जो मैं समझता हूँ देयर इज ओनली वन वे। आप वापस नहीं आ सकते अगर आपने चीज़ें ठीक नहीं की, देन आपकी फाइल चली गई एंड देन यू आर गॉन। राइट। ठीक है। नहीं, थैंक यू वेरी मच। चूँकि टाइम इज़ क्वाइट टाइट, हमने और भी टॉपिक्स पे बात करनी है और फ्यूचर में हम टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे, और ये टॉपिक्स असल में ऑडियंस की तरफ से ही आता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नो प्रॉब्लम। नाज़रीन, आपने देखा सलमान ने बहुत अच्छी बात की कि ये जो मेरा पहला क्वेश्चन था रीफाइनेंस का, इट ऑल डिपेंड्स कि क्लाइंट उसको हैंडल कैसे करता है। अगर आप एक स्कूल जोन में 40 की स्पीड पे जा रहे हैं और वहाँ अगर आपने 40 को क्रॉस किया तो जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपके अपने ऊपर है, और ये भी है कि स्कूल के एंड उसके सामने अगर आपने गाड़ी पार्क की तो तब भी आप उसके ऊपर लायबल है। इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ स्मूथ यू कैन टेक योर इन्वेस्टमेंट। यहाँ से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ। स्टे विद अस। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शेख अजीज़ हैं, अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, जिन्होंने लाइफ में बहुत सक्सेस लिए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि ही इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल, जो इतने सक्सेस के बाद बैक होम से आए हैं और यहाँ कनाडा में रह रहे हैं, फैमिली यहाँ पर है, माइग्रेट किया इन्होंने। तो इनसे हम बहुत अच्छी तरह डिफ्रेंसिएशन है वो ये देखेंगे कि बैक होम में और यहाँ डिफरेंस क्या है, तो इनकी अपनी ज़ुबानी हम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज़िया भाई, आपने इनवाइट किया और याद रखा। तो मैं तो आके आपके हमेशा ही प्रोग्राम में काफ़ी इंजॉय करता हूँ, बहुत कुछ सीख के जाता हूँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम निकाला। आई नो कि यू डोंट हैव मच ऑफ टाइम और आपने वापस भी जाना है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं, माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स अ गुड फ्यूचर, उनके बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, और समझते हैं कि यहाँ पे सेफ़ एंड सिक्योर है। तो मेरे ख़्याल में जो इमिग्रेशन होती है उसमें डिफरेंट स्केलिंग के लोग हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। तो जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आप उनको इस वक्त हमारे प्रोग्राम में क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ उस हद तक सोचें या थोड़ा सा और भी अपने विजन को वाइड करें? ज़िया भाई देखिए, यहाँ पे जो भी, जैसे मैं आया हूँ एज ए इमिग्रेंट, इस तरह पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आ रहे हैं जी। यहाँ आने का मकसद जो हमारा है वो एक बेहतर मुस्तकबिल अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। डेफिनेटली, बिल्कुल। और उसके लिए हमें आके यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो इस पे वर्किंग करनी है कि आया हम जो इन्वेस्टमेंट ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टीज़ में करना चाह रहे हैं वो क्या अपना सही ट्रैक पे हम चल रहे हैं, सही लोगों के ज़रिए, सही ब्रोकर के ज़रिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कोई किसी गलत उसमें तो नहीं। और दूसरा, जो इस ट्रैक पे प्रॉपर सही चल पड़े हैं, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर, सेफ़ और अच्छी इन्वेस्टमेंट दुनिया में कनाडा से बेहतर नहीं है।
नहीं, डेफिनेटली शेख साहब, अभी माशाल्लाह आपने ख़ुद जो है ना, यू डिड क्वाइट वेल। पाकिस्तान में आपने अगर कोयटा की बात करें तो आपने इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल आपने वहाँ पर बिल्ड किया है, जिसमें ऑलमोस्ट ओवर 100 शॉप्स हैं। उसके अलावा लाहौर में आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, डेवलपमेंट चल रही है, जिसमें ओवर 40 कॉन्डोमिनियम्स हैं। तो आप ख़ुद न सिर्फ बिज़नेस में बल्कि डेवलपमेंट में बिग टाइम इन्वॉल्व है। तो एक डेवलपर के लिए पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या उसी के लिए यहाँ पर कनाडा में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? ये तो मेरे सवाल का पहला हिस्सा है। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि जो इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं वो स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए इन्वेस्टर बनना या डेवलपर बनना यहाँ पे कितना इजी या मुश्किल है? देखिए ज़िया साहब, सबसे जो बड़ा जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपने फुल फ्लेज पैसा अपनी जेब से इन्वेस्ट करना है। से एक आप बिल्डिंग बना रहे हो, जब तक पैसा कोई आपको बैंक वहाँ पे फाइनेंस नहीं कर रहे, कोई लीजिंग का सिस्टम वहाँ पे नहीं है, सारा पैसा आपने, और आपका 100% लोगों को यकीन हो कि ये बिल्डर नहीं भागेगा, कोई फ्रॉड नहीं करेगा, तब लोग आपकी तरफ आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। सही। यहाँ पे सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हो तो बैंक्स आपको बहुत बेहतर, बहुत कम रेट पे 3%, 2.5%, 3%, 4% पे फाइनेंस कर देते हैं, और फिर उसी पैसे से आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, और फिर आगे जब आप उसकी बुकिंग खोलते हैं तो लेने वाले के लिए सबसे जो आसानी है कि वो उसके पास एक कॉन्डो का या किसी कमर्शियल में अपना वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, 20% प्रॉपर्टी की कीमत होनी चाहिए और वो 1.5 साल 2 साल में उस प्रॉपर्टी का वो मालिक है, और उसके बाद फिर आगे लीजिंग हो जाती है। लीजिंग के बाद आपके ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं आता। पाकिस्तान में आपके पास जब तक 100% पैसा ना हो, आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते। तो शेख साहब, आपका कहना ये है कि जो इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं उनके लिए ये बड़ा एक ओपन ग्राउंड है कि अगर वो चाहें वो कल को बड़ा अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं और कल को बहुत अच्छा डेवलपर बन सकते हैं, और उनके लिए स्क्रैच से स्टार्ट करने के बड़े मौके हैं। बहुत मौके हैं, और सबसे बड़ी जो अच्छी बात है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है। किसी तरह भी यहाँ पे मैंने जो आज तक जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए, ये नहीं देखा कि कोई प्रॉपर्टी नीचे गई हो। और जब भी 2 साल 3 साल बाद वो प्रॉपर्टीज़ कंप्लीशन पे इनको मिली हैं, वो सारी ही मार्जिन पे लोगों ने अपने पास रखी हैं या सेल किए हैं। कोई लॉस पे मैंने अभी तक प्रोजेक्ट नहीं देखा, स्पेशली डाउनटाउन में अपना टोरंटो में जो है। तो शेख साहब, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एज अ डेवलपर जो आपको चैलेंजेस होते हैं वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वो जो डे टू डे ट्रेडिंग है वर्सेस यहाँ कनाडा में जो आप डेवलपिंग करते हैं और ट्रेडिंग है, दोनों में डिफरेंस है? सर जी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए जी, यहाँ पे जो आपका एक सिस्टम है, एक सिस्टम के मुताबिक सारे लोग डेवलपमेंट करते हैं, सिस्टम्स के मुताबिक आगे सेल होती है। हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हर आदमी स्क्रीन पे नहीं आना चाहता, कि हालात की वजह से। सही। यहाँ पे तो लोग खुद चाहते हैं कि हम स्क्रीन पे आके काम करें, लाके लोगों को हमारा पता लगे। और पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं वो बिहाइंड द स्क्रीन चले गए। वो अपने आप को शो ऑफ नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से ये मामला जो है वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही काफ़ी बड़ी जो है। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। आपके ये जो 4-5 बहुत ही सॉलिड पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली नाजरीन इससे फ़ायदा उठाएंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने देखा कि बहुत ही कम टाइम पे इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें की। आपको बेसिकली इन्होंने जो है ना की पॉइंट्स बताएं सक्सेस के। द रेस्ट इट्स अप टू यू गाइज कि ठीक है, बच्चे आपके हाई एजुकेशन पे चले जाएं, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी यहाँ सेफ़ एंड सिक्योर गुजारें, लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, उस एरिया को इग्नोर ना करें, उसको बहुत वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंस दें, ताकि आपका जो सेकंड जनरेशन है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इतना स्ट्रांग हो ताकि वो हमेशा आपको याद रखें एज अ गुड पेरेंट। यहाँ से हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। स्टे विद अस।
Hi, I'm Zia Abbas introducing the first 2015 condominium project Stanley Condos in downtown Toronto. It's at the corner of Church and Carlton, next to Ryerson University, walking distance to St. Michael, Eaton Centre and Dundas Square. Call me for the guaranteed units before VIP opening. ABN एक अकाउंटिंग फर्म है जहां आप मुख्तलिफ मालियाती और इक़्तिसादी मुशावरत के लिए हमारी खिदमात और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं ताकि न सिर्फ आपकी सरमायाकारी महफूज रहे बल्कि इसमें इजाफा हो। गिनती की दुनिया से बाहर देखिए, CPAs आपके मावन मददगार साबित हो सकते हैं। Where Tribute really makes a difference is in the quality. My Tribute. The warranty's there, but you won't need to use it. My Tribute. Outstanding quality for complete peace of mind. My Tribute. Quality that exceeds the standards. Winner of the J.D. Power Award for highest in customer satisfaction with new home builders in the GTA. A tradition of excellence for over 30 years. Visit mytribute.ca. काम, खेल और लगन, जब आप घर की तरफ आते हैं तो जिंदगी भी आपके साथ आती है। किंग एंड जॉन में रिहाइश रखी है जो कॉन्डोज, मकानात, दुकानें, सब्जाजार और दीगर सहूलियात से आरास्ता है। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए garrisonpoint.ca। Abrahams LLP. We provide services in corporate law, civil litigation, and real estate. We are lawyers to Toronto's entrepreneur. You work hard, you dream, you wish to protect your family now and in the future. You wish to retire comfortably. You are highly paid professional and would like to reduce taxes and grow wealth. Call Zahid Sayyed, a chartered life and registered health underwriter at 905-624-0008. Thank you. रीफाइनेंस करने का मतलब सिर्फ अपने डेट्स पे ऑफ करना या वेकेशन प्लान करना ही नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी उस इक्विटी से जो आपके घर के अंदर मौजूद है। अपने ऑप्शन डिस्कस करने के लिए मुझे कॉल करें। दो दहाइयों पर मुइल बेकर रियल एस्टेट टोरंटो में पेश करते हैं एक और कामयाब तामीराती मंसूबा। जब आप बेकर के जरिए खरीदारी करते हैं तो आप फायदे में हैं। Hi, I'm Zia Abbas introducing the first 2015 condominium project Stanley Condos in downtown Toronto. It's at the corner of Church and Carlton, next to Ryerson University, walking distance to St. Michael, Eaton Centre and Dundas Square. Call me for the guaranteed units before VIP opening. नाज़रीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन के हवाले से काफ़ी चीज़ें थी। उम्मीद है कि आपने उसमें से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ें पिक की होंगी। शेख अजीज़ ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि जब हम माइग्रेट करके आते हैं यहाँ तो हम अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए आते हैं, लेकिन साथ साथ में हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर काफ़ी गौर करना चाहिए, इसलिए कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव और डे बाय डे काफ़ी एक्सपेंसिव हो भी रहा है। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट साइट्स पे इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपके जो बच्चों की एजुकेशन है वो एक्सट्रीम लेवल पे जा सकती है इन टर्म्स ऑफ कि जी आपने पब्लिक स्कूल से प्राइवेट स्कूल में गए, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में गए, ये वो सारी चीज़ें खुल जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जी आप साथ साथ में इस पर्टिकुलर पाथ पे भी गौर करें। सलमान ने बड़ी अच्छी बात की रिफाइनेंस की, जो मैंने आज बहुत ही हार्श क्वेश्चन पूछे थे उनसे कि जी आप बताएं कि रिफाइनेंस का जो नेगेटिव एक्सपेक्ट है वो क्या है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि जिस व्हीकल पे आप बैठे हुए हैं उसको आप ड्राइव कैसे कर रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में कैसे है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे लेके चल रहे हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे लेकिन सिनेरियो आपने खुद हैंडल करना है अपने इर्द गिर्द देख कर चीज़ों को। यहाँ से मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। अपने ईमेल्स, अपने फीडबैक ज़रूर भेजा करें। अल्लाह हाफ़िज़।